Hello students, welcome to the Tantray sir physics classes. Today it is the second lecture on work, power and energy. Last time we explained what is work. I have given some examples also. And now today I will give more examples on that work. And then I will discuss with you work energy theorem. That is the most important theorem that we have to learn today. And then I will give you some application techniques of work energy theorem. Because that work energy theorem is used everywhere, anywhere in the field of physics, from mechanics, top to the electromagnetism, electric field, magnetic field, gravitation. In all those branches of physics, we use work energy theorem. So this work energy theorem is very important और हमें इसको अच्छी तरह से करना होगा. पहले work energy theorem क्या है, फिर इसके application techniques. Okay, now let me start again. Last time I discussed work with you. And now let me give you more examples of work because उसमें मैंने आपको बताया था जब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे पोजीशन वर्सेस फोर्स पर में उस ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ जो वो एरिया आता है दैट इज आल्सो वर्क डन. तो उस पर मैं दो चार एग्जांपल्स आपको दूंगा सो दैट यू बिकम क्वाइट फेमिलियर विद दैट. ओके, स्टार्ट विद वन पॉइंट नंबर वन. This is a graph x versus force. Let me take this graph and okay, let me take simpler one. This simpler one 0 and it is okay 10. Let me say it is 20 and let me say it's 10, 20, okay 30. It should be like this because this is not the same as this. Let me take this 30 and this is 40 and this force here is okay 10. What is the work done? If the graph is like this, what is the work done? Work done is area under the graph. Work done is area under the graph and that is area of this and area of this. So it is 1 by 2 base into height. Base is 10, height is again 10 plus it is here length, this length into this length, that is the area of this rectangle. That is 30 minus 10, that is 20 into again this part, that's 10 plus this area is again the same as this 1 by 2, base is 10, height is again 10. This is work done is equal to, it is 100 by 250 plus 200, again 100 by 2, that's 50, and this work will become 200 plus 100, that is 300 joules. This is one example in which we can find the work done by the graph force versus position graph. But here force and displacement position is in the same direction. It is force should be the same direction as the displacement, one dimensional motion. Okay, okay, number one. Number second one. Okay, second one. और एक ताकि आपका एक्सपीरियंस और बढ़ जाए, फोर्स वर्सेस पोजीशन. लेट मी स्टार्ट द ग्राफ like this and like this. What is the work done? It is 0, it is 10, it is 20, it is 10 again. I make this simple, this numbers I make simple so that in calculation there is no problem presently, so that concept is clear. Now what's the work done? Work done, this is a positive work done because इसमें force और displacement दोनों positive है, दोनों एक ही direction में है, तो इसलिए ये जो work है ये positive है. लेकिन यहाँ इस quadrant में अगर देखोगे आप, ये force negative है लेकिन position is again positive. Position positive है लेकिन force negative है, तो that means position is like this and force is like this, work done is negative. तो इसके लिए negative work. So it is 1 by 2 base, that is 10, into height, that is again 10,
तो वो एरिया इसका है, माइनस ऑफ दिस एरिया दैट इज 1/2, 10 into 10, that is 0. Work done is 0. So work done is upper area minus lower area here again. क्योंकि यहां क्लियर है, यहां जो वर्क हुआ इसके लिए वो पॉजिटिव है और इसके लिए नेगेटिव, देयरफॉर वर्क इज 0. ये मैंने आपको बताया इसलिए कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. थर्ड वन, कभी ऐसे भी हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए. ये ग्राफ होगा, सपोज ये ग्राफ होगा, it is okay, it is 0, it is minus 10, it is here 10, it is here 10, it is here 10 again, here it is, let me suppose it is 30. What is the work done? किसके लिए वर्क पॉजिटिव है? इस पार्ट के लिए वर्क पॉजिटिव है, that we know because force is positive and displacement is positive. Positive work. इसके लिए वर्क is negative. Why? Because displacement is positive, but force is negative. ये नेगेटिव है. लेकिन इसके लिए क्या है? What about this part? यहाँ displacement negative, but force positive. So force and displacement जब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फोर्स पॉजिटिव है जैसे है यहाँ है इस क्वाड्रेंट में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो इसके लिए भी वर्क डन इज नेगेटिव. तो व्हाट इज टोटल वर्क डन? माइनस 1/2 बेस दैट इज 10 into height that is again 10 plus positive work that is 1/2 base that is 10 height that is again 10. Negative work here, there is 1/2 base 30, ये लो not 30 minus 10, that is 20 into height that is 10. So work done is, it is 50 minus of course plus 50 minus ये 10 minus 100, तो वर्क डन इज माइनस 100 जूल्स. ये मैंने इसलिए आपको कहा कि आपको पता होना चाहिए, इसके लिए वर्क डन नेगेटिव, पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव और इसके लिए भी नेगेटिव. अब अगर यहाँ क्वाड्रेंट ये ग्राफ होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ फिर से पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में एक्स फोर्स भी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव. जब दोनों नेगेटिव होंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा. जब इस क्वाड्रेंट में वर्क डन होगा, इस क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा, तो फिर से वर्क डन पॉजिटिव. अगर ऐसे ग्राफ होगा, समझो इसमें जो इसका एरिया है, उस एरिया के लिए ये फोर्स भी नेगेटिव है डाउन द एक्सिस, डाउन द वर्टिकल एक्सिस, और एक्स भी नेगेटिव है. जब दोनों नेगेटिव हो गए तो वर्क डन फिर से पॉजिटिव हुआ. सो ये मैंने सोचा कि ये मैं आपको थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स दे दूं. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट. मैंने कल आपको बताया वर्क के बारे में बहुत कुछ, लेकिन मैं चाहता हूं कि और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाए ताकि आप इसके साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए. तो लेट मी मेक वन मोर एग्जांपल. थर्ड, सपोज R1 is equal to 2i plus 3j. This is the radius vector of a particle. How much particle is away from the origin? Vector distance. And R2, particle goes to the position second. Okay, 3i plus 2j कर दूंगा मैं. ये है, मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं तो पार्टिकल यहां है, उसका रेडियस वेक्टर R1 है, और पार्टिकल घूमते घूमते यहां चला गया और इसका रेडियस वेक्टर R2 है. तो मुझे निकालना है व्हाट इज वर्क डन. क्या वर्क डन इफ फोर्स इज इक्वल टू 5i प्लस 5j. ये है फोर्स, वेक्टर है फोर्स, वेक्टर में दिया है कंपोनेंट्स में, रेडियस वेक्टर 2 दिए हैं, ये इनिशियल रेडियस वेक्टर है, पार्टिकल का पोजीशन, एंड फाइनली पार्टिकल गोज टू द सेकंड पोजीशन. तो हमें निकालना है व्हाट इज वर्क डन. ये एस सी वर्मा का प्रॉब्लम है शायद, हाँ एस सी वर्मा से मैंने ये प्रॉब्लम लिया है. तो क्या है वर्क डन? तो पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज कांस्टेंट एंड यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट द वर्क डन. दैट इज वर्क डन इज F.S, F. डिस्प्लेसमेंट.
That is the work done when this force is constant. If force is not constant, it is variable. I have given you the formula for that. That is an integrated formula. अच्छा, तो पहले तो ये करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है. ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट आर समझो या एस समझो. बताइए डिस्प्लेसमेंट एस किसके बराबर है? दैट इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. क्या लिखूं r2 के लिए? 3i प्लस 2j. तो सब्ट्रैक्ट करके क्या करूं? 2i प्लस 3j. सिंपल. वेक्टर को वेक्टर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड थ्रू कंपाउंड्स इन ए सिंपल वे, इन ए सिंपल एल्जेब्रिक वे. सीधे सीधे r2 यहां लिखा माइनस r1 वहां लिखा. तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 3i में से 2i निकालूंगा तो वो तो i हो गया. जब 2j में से 3j निकालूंगा, माइनस 3j, ये प्लस 2j है, वो तो 3 ज्यादा है तो माइनस j होगा. तो ये हुआ रेडियस वेक्टर, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट. नाउ अब वर्क कैसे निकालूंगा? उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है कांस्टेंट फोर्स के लिए, ऐसे कुछ. तो F को लिखिए जो आपके पास है 5i प्लस 5j i माइनस j, ऐसे कुछ करके. बताइए व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट? 5 into 1 that is 5, 5 into 1 that is 5, 0 answer. That is the answer. ऑब्वियसली अगर 0 है आंसर तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. That means force and displacement should be perpendicular to each other. Why? Because force dot S that is 0 and work done is 0 only because when the angle between F and S is 90 degrees. और अगर देखो ये भी, this displacement and this force are certainly perpendicular to each other. अगर देखा जाए क्लोजली देख लो, देखो ये I प्लस j है, ये I माइनस j है, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है अगर अच्छी तरह से देखो तो. ओके, दैट वाज द थर्ड. दिस वाज जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 1 में. अगर आपने उसको अच्छी तरह से देखा होगा, आई डोंट नो वेदर यू हैव वॉच्ड दैट लेक्चर और नॉट, बट आई रिकमेंड यू वॉच दैट लेक्चर बिफोर यू गो टू दिस लेक्चर. ये उसी का बैकलॉग था, वहां मैंने कुछ बताया था. मैंने सोचा कि और भी आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स दे दूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो. अच्छा, लेट मी गो टू द न्यू थिंग दैट इज न्यू concept, fourth one, that is what you call as fourth work energy theorem. Work energy theorem ये है work energy theorem. मैंने आपको पहले भी बताया, this theorem is very important in physics. It has wide ranging applications. ये मैग्नेटिक्स से शुरू लेकर के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड व्हाट यू कॉल टू दैट thermodynamics में भी it is sometimes used, and also where मैग्नेटिज्म में भी, जहां कहीं भी वर्क होने का एहतमाल होता है फोर्सेस है, वहां इसका यूज होता है. तो क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम? तो मैं पहले स्टेटमेंट देता हूं, क्लियर स्टेटमेंट. वर्क एनर्जी थ्योरम, पहले लेट मी स्पीक आउट द स्टेटमेंट, देन आई विल राइट डाउन इट ऑन द बोर्ड. वर्क पावर एनर्जी का जो स्टेटमेंट है, इट इज लाइक दिस: द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, सारे यूनिवर्स के जो फोर्सेस काम करेंगे ऑन एन ऑब्जेक्ट that appears as the increase in change in kinetic energy of the object. That's all. Work done by all the forces, work done by all the forces on the object is equal to change in kinetic energy of the object. When I say all the force, I mean all the forces. Maybe it is conservative force, maybe it is non-conservative force. जो force भी इस पर काम करेगा, उस force की वजह से इसका kinetic energy change हो जाएगा. तो मैं लिखूंगा, later I will explain. Work done by all the forces on the object is equal to change
in kinetic energy of the object. ये है statement. Work done by all the forces on the object is equal to change in kinetic energy of the object. Mathematically क्या लिखूं? Kf, चलो, final kinetic energy of the object after the forces have acted minus initial kinetic energy of the object is equal to work done, W. तो most of the books write delta W, मगर डेल्टा W से शायद कोई स्टूडेंट ये इन्फर करेगा कि शायद ये चेंज इन वर्क है. चेंज इन वर्क कोई वर्ड ही नहीं है, तो इसलिए मैं डेल्टा को खत्म करके सिर्फ W लिखता हूं. वर्क डन. Change in kinetic energy is work done by all the forces, not by a single force, by all the forces. ये है statement. That's all. लेकिन चूंकि स्टेटमेंट बड़ा छोटा है, छोटा स्टेटमेंट है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस वाइड रेंजिंग है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है इसके, इसलिए इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको प्रूव करना पड़ेगा. आई विल प्रूव इट इन अ मोमेंट in a simple way, maybe more than in a more generalized way, because स्टेटमेंट छोटा है, कम है और इसके एप्लीकेशन ज्यादा है, तो इसको यहां पर थोड़ा सा हम करना चाहते हैं. वी वांट टू गिव इट सम रेस्पेक्ट इन ऑर्डर टू यूज इट अदर प्लेसेस, राइट? ओके, चलो फिफ्थ पॉइंट. चलो मैं इसको ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको मैं प्रूव करना चाहता हूं इन अ वेरी सिंपल वे, सो दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट क्विकली एंड everybody should be familiar with that. ये देखिए, मैं आपको बताता हूं. अगर ये बॉडी है, इसका वेलोसिटी u है, मास m है, आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया फॉरवर्ड, तो ऑब्वियसली जब आपने फोर्स अप्लाई किया इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो इट विल स्पीड अप. इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज फोर्स और वेलोसिटी का जब सेम डायरेक्शन होता है, या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जब सेम डायरेक्शन होता है, तो स्पीड इंक्रीज हो जाता है. या स्पीड होते स्पीड इंक्रीज होते यहां आ जाता है, लेट मी सपोज, एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ s. तो यहां जाकर आपने फोर्स को रिमूव किया, लेकिन बाय दैट टाइम इट इज वेलोसिटी बिकम्स v, मास इज द सेम. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द वर्क डन? एवरीबॉडी, यस, दैट वाज सिंपल, f into s. Can anybody tell me what is change in kinetic energy? Yes, 1/2 mv square is final kinetic energy minus 1/2 mu square is initial kinetic energy. That is change in kinetic energy, delta k. Okay, तो अब मुझे साबित करना है कि ये इसके बराबर है. Change in kinetic energy is equal to work done by force. यहाँ एक ही फोर्स है, अगर 2-4 फोर्स भी होते तब भी यही था. अच्छा, अब जरा देखो, इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा k इज इक्वल टू, यहां पर 1/2 m कॉमन निकालिए, और ये हो गया, ये मैंने यहां लिखा और इसको वहां लेकर के v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कर दिया. तो डेल्टा k किसके बराबर लिखूं? 1/2 m. तो ठीक, कोई मुझे कह सकता है व्हाट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मूला? अगर याद होगा आपको, दैट इज 2as. That is 2as if somebody knows it, but I had given you this formula for in constant acceleration equations. इसमें मैंने ये फॉर्मूला दिया था. तो v square minus u square is equal to 2as. 2 gets cancelled. Delta k is equal to mas. Delta k is equal to ma is force. That is what you know by Newton's law. It is force. S, that is work done. Finished. तो हमने क्या किया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन. इतना इजी से, बहुत ही सिंपल तरीके से ये साबित हो गया कि जो फोर्स ने काम किया, दैट इज एफ एस, दैट इज वर्क, दैट अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो आप समझ लो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर काम करता है, उस पर फोर्स दे करके उस पर वर्क हो जाता है, समझो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा. ऐसे चेंज होने का मतलब यह नहीं कि इंक्रीज होगा, चेंज होगा. हो सकता है आपने नेगेटिव वर्क किया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. सपोज आपने पॉजिटिव वर्क किया
तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा. सो स्टेटमेंट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. It is very much possible to find kinetic energy may be lesser if negative work is done on the object. तो ये फिफ्थ पॉइंट में मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम को साबित किया. लेकिन क्योंकि यहां पर सबूत जो मैंने साबित किया है, इस पर मैंने ये फोर्स कांस्टेंट रखा. आप कहेंगे हाउ डू आई नो दैट फोर्स इज कांस्टेंट? बिकॉज मैंने यहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया और वर्क डन को भी मैंने Fs जो है ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन है. तो ऑब्वियसली आई एम यूजिंग ए कांस्टेंट फोर्स. मे बी समबडी सेज सर ये तो कांस्टेंट फोर्स है, अगर फोर्स वेरिएबल होता तो शायद ये वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड नहीं करता. सो लेट मी प्रूव इट फॉर दैट इवन, बिकॉज इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल. सो लेट्स डू इट लाइक दैट. देखो मैं इसको वेरिएबल फोर्स के लिए भी साबित करना चाहूंगा. देखिए हैव ए लुक. सिक्स्थ पॉइंट. This is an object. You are applying a force, but this force is variable, and the body moves. Body moves in whatever way, and clears some displacement. Its initial velocity is u, its final velocity is v, and what is the change in kinetic energy? 1 by 2 mv square minus 1 by 2 mu square. Because kinetic energy का फॉर्मूला ये है. Everybody knows. अब जाकर के मैं ये एज्यूम करूंगा फोर्स कांस्टेंट नहीं है. अगर मैंने एज्यूम किया फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो मैं वर्क डन निकालूंगा, और वर्क डन तो आपको पता है इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट देन वर्क डन एज यू नो इज नॉट F डॉट एस, इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन ये है. अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरा लेक्चर आपने पूरी अच्छी तरह से पहला देखा होगा, ये है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. चलो लेट मी मूव विद इट. देखता हूं मैं आगे कहां तक जाऊंगा. चलिए W इज इक्वल टू वर्क डन R1 to R2. ये जो फोर्स है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मगर वेक्टर का खास ख्याल रखना पड़ेगा. डॉट dr, ये ठीक है. चलो और एक स्टेप. वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 to R2 m, ठीक है ना. ये एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन इज dv by dt डॉट dr. ये देखो यहां तक तो पूरा ठीक है, क्लियर है और सिंपल भी है. अभी कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं आया. Don't forget that what I am doing. I am trying to prove work energy theorem for a variable force. For a constant force, it is simple. I am repeating what I am doing. Okay. Now, चलो लास्ट स्टेप को रहने दो इस तरह से. वर्क डन इज इक्वल टू, चलिए m बाहर आएगा, m बाहर आएगा. इट इज R1 to R2. ये देखिए m बाहर आया. इट इज dv by dt एंड डॉट dr. ये dt स्केलर है, इसको dv के नीचे रखो या dr के नीचे रखो, एक ही बात है. इसको dr के नीचे भी रख सकता हूं, बिकॉज ये स्केलर है, चाहे यहां रखो या यहां रखो. मैंने इस dv से हटाकर इसको dr के नीचे रखा. डजंट मेक एनी डिफरेंस. इट इज m, इट इज R1 to R2, इट इज dv डॉट v. ये वेलोसिटी का डेफिनेशन है. अब यहां आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूंगा आगे. यस, सो इट इज वर्क डन इज इक्वल टू, ये m है ना, तो क्या किया जाए इसका. चलो मैं कुछ लिखता हूं. लेट मी सी इफ यू अंडरस्टैंड. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूंगा. मैं लिखूंगा m by 2 इंटीग्रेशन v1 to v2 now, because now I am not integrating over displacement, I am integrating over velocity. It is dv dot v. शायद ये आपको समझ नहीं आया मैंने ये इसके बराबर कैसे लिखा. हाँ, थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा आपको और सोचना पड़ेगा हाउ आई रोट दिस काइंड ऑफ एन इक्वेशन. चलो पहले कर लो, लास्ट में जब मैं खत्म करूंगा तो लास्ट में इसको पिकअप करके वहां पर मैं आपको साबित करके दूंगा. हाँ, दिस इज रियली दिस इक्वेशन.
चलो, इट इज वर्क डन इज इक्वल, लेकिन कीप दैट इन योर माइंड, मैंने यहां 2 लिखा और यहां डी वी डॉट वी लिखा, और मैं साबित करूंगा ये इसके बराबर है, ये वाला चीज इसके बराबर है। पहले ये चीज तो 2 तो यहां ही है। चलो, सो इट इज m/2 इंटीग्रेशन v1 to v2 dv square, v dot v is v square, d and this cancels, d and v cancels। सिर्फ मुझे यह साबित करना है ये जो है ये इसके बराबर कैसे है, डिवाइड बाई 2 ऑफ कोर्स, ये 2 यहां नहीं, पहले यहां ही रखो। ये इसके बराबर कैसे, ये मैं साबित करके दूंगा, इंटीग्रल वही है लेकिन ये इसके बराबर कैसे, ये मैं साबित करके दूंगा, लेकिन आपको पहले ये आना चाहिए था, नहीं आता है, मैं साबित करके देता हूं। ओके, चलिए, but we are doing good physics. I am trying to prove the what you call as work energy theorem by a variable force, so it will have this kind of थोड़ा सा difficulty इसका ये आएगा। So work done is equal to m/2, तो ये तो खत्म हो गया है, it is v square under what limit, v1 to v2 और u to v, अगर आप इनिशियल वेलोसिटी u लोगे फाइनल वेलोसिटी v लेंगे आप, तो इट इज m/2, इस v का क्या वैल्यू, पहले ऊपर वाला लिमिट v स्क्वायर, फिर नीचे वाला लिमिट u स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 mv स्क्वायर मल्टीप्लाई करके माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ओह, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। So again work done is change in kinetic energy. So work done on an object is just appears as kinetic energy of the object. ठीक, लेकिन मैंने आपसे वादा किया कि मैं इसको साबित करता हूं। चलो मैं साबित करता हूं इन ए मोमेंट। मैं साबित करता हूं इस चीज को जो यहां से यहां मैंने लिखा ये स्टेप, वैसे आपको आना चाहिए इफ यू नो ए लिटिल बिट ऑफ कैलकुलस, लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूं। ये 6th पॉइंट है, देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर 7th पॉइंट। चलिए ठीक है, नाउ व्हाट इज, यह साबित मैंने करना है, dv डॉट v इज इक्वल टू d बाई v डॉट v बाई 2, यह साबित करना है मुझे। चलिए ठीक है, करते हैं साबित। ये 1/2 है d ऑफ v डॉट v, ये मैंने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड मैंने लिया, तो अब राइट हैंड साइड जब मैंने लिया तो 1/2, ये डिफरेंशिएशन है डी वी डॉट वी का, तो वी डॉट वी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, पहले वी फिर इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, ये ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन कर लो अब डॉट वी, ये यू वी फॉर्म का है, ये ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन, फिर ये ऐसे ही तो इसका डिफरेंशिएशन, इसको यू वी फॉर्म कहा जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ one thing kept like that, differentiation of the other thing, plus पहला ऐसे रखना है, differentiation of second thing, that is v dot dv plus इसका differentiation dot v, this is 1/2, a dot b is equal to b dot a, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, a dot b commutative law is equal to b dot a, अगर ये है तो फिर ये इसके बराबर है, तो ये होगा 2 times dv dot v, ये खत्म हो गया, तो वही फिर से ऐसे देखो dv डॉट v, खत्म बात, it can be done in a moment. Okay, 7th point, अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्लियर हो गया। अब इसके एप्लीकेशंस कहां कहां आते हैं, कहां मतलब हैवी प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस करके शॉर्ट में हो जाता है, कहां कहां इसके एग्जांपल्स नहीं है, तो कहां से मैं पिकअप एग्जांपल करता रहूंगा, देयर आर सो मेनी फील्ड्स, सो आई विल ट्राई टू पिक अप सम एग्जांपल्स wherever I can find it out. Okay, let me take an example. चलो, okay, simple example I will try. It is initial velocity इसका 0 है, falls under gravity, constant, acceleration due to gravity is constant, force mg, ये velocity v, लगाइए work energy theorem to find this v. So what is the rule?
change in kinetic energy is equal to work done. What is change in kinetic energy? 1/2 mv square is final kinetic energy minus 0 is equal to what is work done by the force, gravitational force. Displacement भी नीचे है, force भी नीचे है, तो हो गया product positive, that is mg into h. This h, this is the work done simply, because when force and displacement are in the same direction, just multiply them. तो डॉट तो खत्म है, because cos 0, fs cos theta, fs cos 0, fs, because cos 0 is 1. So it is 1/2 mv square is equal to mgh. M gets cancelled, v is equal to 2 यहाँ पर 2gh root. Finished. आपने वेलोसिटी फाइंड किया, फाइनल वेलोसिटी यूजिंग वर्क एनर्जी था. वैसे आपको पता होता है कि v is equal to root of 2gh when a body falls under gravity over a height h. Final velocity is root of 2gh. You find it by any other method also, by many methods, but this is also one of the methods. मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम का थ्योरम लगाया. Although this is a very simple example, I start always with the simple examples. Okay. Change in kinetic energy को work done. There is only one force, so work done by a single force. अगर और सारे forces होते तो work done by all those forces. 8th point. चलो थोड़ा सा मैं इसको बनाऊंगा. ये एक इंक्लाइन लेता हूं मैं. बॉडी यहां है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है. इट फॉल्स डाउन टू द एज. ये थीटा है और ये लेंथ एल है, ये एच. समझो यहां जब ये ग्राउंड पर आ जाता है, फॉल होते होते जब ये ग्राउंड पर आ जाता है तो ग्राउंड पर फ्रिक्शन है. जैसे फ्रिक्शन फ्रॉम द फ्रिक्शन. यहां फ्रिक्शन नहीं है, नहीं रखा यहां पर फ्रिक्शन. इट इज स्मूथ, इट इज स्मूथ. नहीं रखा मैंने डेलिबरेटली. रख भी लो तो उस पर भी कोई फर्क नहीं है, रख सकते हो, लेकिन मैंने फिलहाल इसको स्मूथ रखा. और ये फ्रिक्शन, इस पर फ्रिक्शन. बॉडी यहां पर आया विद सम वेलोसिटी बिकॉज इट रश डाउन. जब इसका वेलोसिटी है तो आगे जाएगा. आगे जाकर के ये फ्रिक्शन पीछे की ओर एक्ट करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द मोशन, रिलेटिव मोशन. तो ये फ्रिक्शन, ये फोर्स जो है, इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, बिकॉज फोर्स इज अपोजिट टू दिस वेलोसिटी. एंड फाइनली इट स्टॉप्स हियर. माय क्वेश्चन, ओवर व्हाट डिस्टेंस इट स्टॉप्स? ये एक्स निकालना है. कितना दूर आगे जाकर ये स्टॉप होगा? इज दैट राइट? इज दैट क्लियर? यू सी, हैव अ लुक. A body falls from the incline, it rushes down because of gravity, and here it moves onto the plane, because the plane तो इस पर friction है. It rubs with the plane, rubs and rubs and rubs and then stops. तो हमारा क्वेश्चन ये है कि over what distance, कितना डिस्टेंस आगे जाकर के स्टॉप होगा? Is that right? देखिए मैं आपको समझाता हूं. तो मैं क्या करूंगा, लेकिन what methods, what else methods you can use from your own mind? आपके पास होंगे मेथड, ऐसी बात नहीं. आप शायद इस बॉडी को यहां लेकर के यहां फाइनल वेलोसिटी निकालोगे. यहां फाइनल वेलोसिटी निकालोगे तो इक्वेशन यूज करोगे, सम इक्वेशन यू कैन फाइंड फाइनल वेलोसिटी है, एंड देन यहां वो उसको यहां इनिशियल वेलोसिटी रख करके यहां फाइनल वेलोसिटी 0 करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा. से भी आपका आंसर हो जाएगा. लेकिन मैं दिखाता हूं वर्क पावर एनर्जी से कैसे किया जा सकता है, और वो भी एक ही इक्वेशन में. यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 और जब ये रुका, स्टॉप हुआ, तो यहां फाइनल वेलोसिटी भी 0. यहां फोर्स जो है इस बॉडी पर, दैट इज लाइक दिस, दैट इज mg sin थीटा फोर्स. वजह, mg डाउनवर्ड एक्ट करता है. इसके दो कंपोनेंट्स, इस mg के दो एक कंपोनेंट यहां निकलेगा mg. अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये mg cos थीटा और mg sin थीटा. ये mg cos था जो इस ओर फोर्स है, प्रेसिंग द प्लेन. ये प्लेन को प्रेस करता है फोर्स, और प्लेन खुद ही इसको नॉर्मल रिएक्शन यूं अप्लाई करेगा. ये नॉर्मल रिएक्शन mg cos था के बराबर होगा. तो दीज टू फोर्सेस बैलेंस आउट, और ये नीचे की ओर mg sin थीटा के फोर्स की वजह से ये नीचे एक्सेलरेट हो जाता है. हाउ डू यू नो दिस फोर्स बैलेंस? इट हैज टू बैलेंस बिकॉज इट डज नॉट पेनिट्रेट द सरफेस. जब तक ये सरफेस को पेनिट्रेट नहीं करेगा तब तक n इज इक्वल टू mg cos था, विच इज ऑलवेज ट्रू. तो n तो बैलेंस कर ही लेगा, बिकॉज n इज एन एडजस्टिंग फोर्स. जितना mg ज्यादा होगा उतना ये नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट करेगा ताकि इस फोर्स को वो किल करे. अच्छा, लेकिन यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो l है, l डिस्टेंस. ठीक,
तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, वही जो मेरे पास है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो माइनस इनिशियल, वो भी जीरो. अब ये नहीं सोचना कि ये देखो इतना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो माइनस जीरो हो गया, अपनी किस्मत से हो गया, फाइनल भी जीरो और इनिशियल भी जीरो. तो आपको चेंज के साथ मतलब है चेंज जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू व्हाट इज वर्क डन फ्रॉम हियर टू हियर. यहां से यहां तक तो सिर्फ ग्रेविटेशन एक्ट करता है, कोई फ्रिक्शन नहीं है. अगर होता तो कर लेते हम उसको भी साथ में, लेकिन सिर्फ ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स mg साइन थीटा है और डिस्टेंस l है, तो mg साइन थीटा इंटू l, ये है वर्क डन. फोर्स इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, फोर्स भी और ये भी, तो मल्टीप्लाई कर दिया. फिर यहां से यहां तक यू नो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज म्यू mg. म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड mg इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स. वो फ्रिक्शन में जब हम पढ़ेंगे तो ये एक्सप्लेन होगा, वरना आई एज्यूम दैट यू नो इट. फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू mg व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन द प्लेन ग्राउंड, then frictional force is always mu mg because mg is the normal reaction on the plane ground. प्लेन ग्राउंड पर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg के बराबर होता है, और आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है when the body is in motion mu n. That mu n is mu mg because normal reaction is mg. Okay. Plus work done by this. तो what is the work done by this? डिस्प्लेसमेंट आगे वो x है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स पीछे दैट इज म्यू mg है. तो अब बताइए वर्क डन. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज थीटा इज 180, cos 180 इज -1, तो उस हिसाब से वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा. सो प्लस माइनस म्यू mg दैट इज फोर्स x. ये है हमारा इक्वेशन. बस mg कैंसल्स, तो x जो आपका है दैट इज L sin थीटा, बिकॉज इन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, L sin थीटा mg कैंसल्स बाय म्यू, only that x is equal to L sin theta by mu, because mg and mg will go with 0, तो mu x is equal to sin theta L, तो x is equal to sin theta L by mu. Answer, single equation has solved the problem. अब ये नहीं करना कि नहीं सर पहले हम यहाँ वेलोसिटी निकालेंगे फिर हम देखेंगे इस वेलोसिटी को कितना है और फिर देखेंगे फोर्स, फिर यहाँ एक्सेलरेशन निकालकर फाइनल वेलोसिटी. दैट इज a lengthier method. People do it, but you should do that also. That will give you experience how to do things. Okay, 8th, 9th. Don't forget that what I am doing, I have just explained work energy theorem, and now we are picking some application techniques which will make you a little familiar with what we are doing. 8th, 9th point. Again, the same work energy theorem पर मैं 9th point work energy theorem पर मैं और पिकअप करना चाहता हूं examples. Okay, let me make an example. Let me make it. Possibly this question is in the NCERT book. A car starts from rest. Okay, from rest. It starts from rest. Means initial velocity is 0. It accelerates and picks up a speed of 72 kilometers per hour in 5 meters or 10 meters or 100 meters. I want to find how much force is needed. Chalo, let me make the question. Force needed to accelerate a car from rest to the speed of 72 kilometers per hour over a distance of 1
ओके 100 मीटर्स। ये है मैंने क्वेश्चन बनाया। देखिए, फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम रेस्ट टू द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। एक कार है, ये रेस्ट में है और आपने एक्सेलरेट किया कार को। जब एक्सेलरेट किया तो स्पीड सब एंड फाइनली इट गेट्स अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर। दैट इज अ फॉर्मेडेबल स्पीड, गुड वन, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। तो हमें देखना है कि ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, यस, यू आर accelerating the car from 0 to 72 kilometers per hour. How much force you created in the car to push it forward? Of course, for that push in the forward direction, you had to expend some fuel. आपको fuel भी use करना है. That is the question. So how to do it? Have a pause and look at the question. Have a pause and look at the question. Okay? चलो ठीक है, मैं करता हूं, आप देखिए। And you see, I'm again using the work energy theorem. That is, I am framing the problems so that I use the work energy theorem for that. Have a look. ये है कार, तो मुझे बनाना इतना ही आता है, बस इससे ज्यादा मुझे कार नहीं बनाना आएगा। So it starts with 0. It accelerates. Okay. When it accelerates, then speed increase, and finally it has a speed of 72 kilometers per hour and over a distance of 100 meters. मुझे देखना यह है कि मैंने कितना फोर्स, how much force I applied on the car. कितना फोर्स कार को अप्लाई हुआ by expending fuel. तो क्या किया जाए? ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, हैव अ लुक। दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आई वांट टू मेक इट मीटर्स पर सेकेंड, तो उसको याद रखो, v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 72 5/18, मेक इट मीटर्स पर सेकेंड। अगर मीटर्स पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बनाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 18/5, इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करो। लेकिन अगर किलोमीटर पर आओ तो 5/18 मल्टीप्लाई करो। ये याद रखने की बात है, इसमें ये नहीं कहना कि चाहिए कि सर ये कहां से आया, ये सिर्फ याद रखने की बात है। तो व्हाट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? ओके, 1/2 m 1/2 m, it is v square, it is 4, it is 20 meters per second. It is 1/2 m, that is 20, चलो पहले मैं फॉर्मूला ही लिखूंगा, v square minus 1/2 m u square is equal to work done, that is f into s. F is f, s is 100 meters, both are in the same direction, displacement and, तो कार का जो मास है that is 500 kg, इसको मैं सपोज करता हूं। तो इट इज 1/2, m इज 500, v स्क्वायर इज 20 का स्क्वायर, ये 0 हो गया क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू f इंटू 100। अब यहां से मैं f निकालना चाहूंगा। व्हाट इज f? यस, दैट इज 1/2 इंटू 500 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 स्क्वायर है ना, बाय 100। ये 2 0 खत्म, यहां से 1 0 इधर, ये हुआ 100, 2 खत्म, 2 0 खत्म, तो ये हो गया, नहीं ये तो 500 है, मैंने भी सोचा कि 100 न्यूटन से क्या होगा यार, 500 कर दो यार, 0 2 0 और ये खत्म, ये 25 10, तो हो गया 1 2 3 न्यूटन, 1000 न्यूटन का फोर्स। ये 500 है, इसलिए थोड़ा सा ये कर लो अच्छी तरह से। तो क्या मैंने प्रॉब्लम बनाया था कि एक कार है, उसको आपने स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया बाय अप्लाइंग द फोर्स दैट इज क्रिएटेड बाय द इनसाइड एक्सपेंडिंग द फ्यूल फ्रॉम इनसाइड। तो आगे जाकर क्या उसका वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो कितना फोर्स हमने अप्लाई करना पड़ा, दैट्स आल्सो डन बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम, ऑल्दो यू कैन डू इट अदर वे अराउंड आल्सो बाय अदर मींस, बट दिस इज द सिंगल इक्वेशन सॉल्यूशन।
This is single equation solution. Okay, 10th point. चलो मैं 10th थोड़ा सा स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम बनाऊंगा मैं. लेट मी मेक ए प्रॉब्लम ऑफ ए गुड नाइस स्टैंडर्ड. एक बॉडी है, इट हैज ए वेलोसिटी, ए बॉडी हैज ए वेलोसिटी, मैं ऐसे लिखता हूं, ए बॉडी हैज वेलोसिटी 4 meters per second. Instead of 4 meters per second. 4 meters per second. It moves on a rough surface, where force is F is equal to minus K by X, because force is position dependent, यानी कि जितना ये आगे जाएगा फोर्स चेंज होता जाएगा x की वजह से. एंड K is, let me suppose 50. Okay, what is the velocity? What is velocity of the object when it moves from x is equal to, okay, फोर्स तो इसी रेंज में है, जो मैं x का वैल्यू दूंगा उसी रेंज में ये फोर्स है. x is equal to 0.1 meters to 20.1 meters, ऐसे यहां से यहां तक के गया. तो मुझे आप बताइए इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा अगर इनिशियल वेलोसिटी है. तो ऑब्जेक्ट का मास भी दिया होना चाहिए. द ऑब्जेक्ट मास शुड बी गिवन. ओके, I will take for convenience mass of the object is 1 kg. I wish the answer should be as simple as possible, but I don't know कि m को सबस्टिट्यूट करने से मुझे क्या आंसर मिलेगा. तो ये जरा देख लो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. An object moves with initial velocity 4 meters per second. It goes on the rough surface. Rough surface creates a backward force, so it retards, it speeds down, and finally it moves with some velocity that I don't know, that I have to find. तो x इक्वल टू 0.1 मीटर से लेकर के 20.1 मीटर तक ही जाता है. तो उस दौरान ये रिटार्डेशन इसका होगा, स्पीड कम होगा, लेकिन हमें देखना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है. इनिशियल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी आई हैव टू फाइंड एंड फोर्स इज गिवन. तो क्या किया जाए, कैसे इसको किया जाए, देखिए मैं आपको समझाता हूं. बट देखो, जैसे हमने अभी तक जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हमने किए उसमें फोर्स कांस्टेंट था, यहां फोर्स कांस्टेंट नहीं है. तो रिकॉल दैट डिस्कशन इन विच आई टोल्ड यू दैट जहां फोर्स कांस्टेंट नहीं है वहां इंटीग्रेटेड फॉर्मूला का यूज होता है. कांस्टेंट फोर्स के लिए F डॉट एस, F और S एक ही डायरेक्शन में तो हो गया Fs, अपोजिट है तो हो गया माइनस Fs. लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तब जाकर इंटीग्रेटेड फॉर्मूला यूज करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds. That we have to use, but here body moves in the same straight line, force and displacement are the same direction, तो डॉट तो जाएगा, so it will be F dx. डॉट वहां नहीं रहेगा क्योंकि cos 0 is 1. ओके, तो अब जरा देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. देखिए, एवरीथिंग इज इन माय माइंड. तो अगर मैं रब भी करूं तो कुछ चीजें मेरे जहन में है. ठीक है, ओके, हैव अ लुक. ये है एक बॉडी, इसका वेलोसिटी u इज इक्वल टू 4 मीटर्स पर सेकंड. तो यहां से फोर्स पीछे की ओर, वो F इज इक्वल टू माइनस K बाय X. तो K दिया है 50. चलो, लेट मी टेक इट, K is 50 meters, because meter has to cancel. 50 न्यूटन मीटर, इसलिए न्यूटन मीटर ऊपर जाकर के मीटर cancels, becomes newtons, and it goes on, and here I want to find its velocity, and mass is equal to 1 kg. मैंने आपको प्रॉब्लम दिया है उसको मैंने वर्ड डायग्राम में बना दिया, वर्ड एक सिंबॉलिक बना दिया. ओके, सो व्हाट इज आवर रूल? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय द फोर्स. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 या Kf माइनस K1 इज इक्वल टू वर्क डन, मगर वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dx. x कितना है, कहां से कहां?
0.1 से लेकर के 20.1 नहीं 2.01 मीटर, 2.01 मीटर, यहां से यहां तक 0.1 मीटर से 2.01 मीटर तक ये का डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट है। चलिए फोर्स एक्ट कर रहा है पीछे की ओर नेगेटिव साइन की वजह से। K2 is 1/2 mv स्क्वायर, ये हुआ 1/2 mu स्क्वायर इज इक्वल टू ओके व्हाट इज दैट इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज फोर्स minus k by x dx, what is initial position of x 0.1, what is final position of x 2.01, ठीक है कि नहीं? Change in kinetic energy, work done, but work done is not F dot S. Now it is integrated formula because force is not constant. Force is not constant. You have to use the integrated formula for that. अच्छा, तो ठीक है, ओके। चलो दूसरा से भी यहां करूंगा 1/2 m को रखो, v स्क्वायर को रखो, 1/2 m u स्क्वायर को भी रखो। फिलहाल यहां में थोड़ा सॉल्व करना चाहिए, माइनस के बाहर dx by x का इंटीग्रेशन ln x अंडर व्हाट लिमिट्स 0.1 to 2.01, यहां से यहां तक, क्योंकि dx by x का इंटीग्रेशन है ln x, log टू द बेस e, जब e की बात आएगा तो ln इसका सिंबल है। तो ठीक है, अब मैं रब करता हूं बिकॉज एवरीथिंग सीम्स टू बी इन माई माइंड नाउ। तो मैं यहां पर ये देखो 1/2 m 1 kg v स्क्वायर, v निकालना है, माइनस 1/2 m दैट इज 1, और ये u स्क्वायर दैट इज how much is that 4 square that is 60, that is 60 is equal to minus k that is 50, right? Ln of x, ln of what is x? X under limits this to this, पहले x को वैल्यू देना पड़ेगा 2.01, फिर ln of 0.1, ऐसे कुछ। चलो देखते हैं क्या होता है। ये हुआ v स्क्वायर बाई 2, ये हुआ 8 इज इक्वल टू, ये हुआ -50 इज ln ऑफ 2.01 बाय 0.1, 2.01 बाय 0.1, ये हुआ v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 8 को वहां -50 ln दिस ln ऑफ 0.1 से ऊपर एक और 0 हो जाएगा 20.01, क्योंकि 0.1 डिवाइड करने से वो 20 बढ़ जाएगा ऊपर का वैल्यू। अच्छा, तो इसका वैल्यू आपको पता होगा नहीं, तो क्या करें? 50 क्या है इसका वैल्यू? ये log टू द बेस ही है, तो 20 इट इज समथिंग लाइक, it should be 3 equal to, it should be 3 equal to 3, it should be equal to 3, मगर ये जो k था ना, k का वैल्यू जो मैंने 50 दिया, k का वैल्यू 0.5, दैट वाज 0.5, k का वैल्यू 0.5 था, आई एम सॉरी 0.5, क्योंकि अगर 50 वैल्यू होता तब जाकर ये वेलोसिटी नेगेटिव होगा, मींस वो रूट के अंदर नेगेटिव होगा, यानी कि ये उस 2, मैं बताता हूं, देखो अगर ये k का वैल्यू है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट 2.01 तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त मुझे v का वैल्यू रूट नेगेटिव आएगा। रूट नेगेटिव का मतलब इमेजिनरी, मींस जहां मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं वहां तक ऑब्जेक्ट गया ही नहीं। सो ये 3 है, इसको 0.5 कर दो, 0.5 से फोर्स का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, यानी कि लेट इट रीच
इट इज टारगेट, दैट इज माइनस के बाय एक्स जो है, के को कम करने से आई लेट इट रीच इट्स टारगेट। अगर के का वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स इतना ज्यादा है वो 2.01 मीटर्स तक जाएगा नहीं, वो उससे पहले ही रुकेगा। तो 2 पर वेलोसिटी निकालने का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए ये वेलोसिटी जो है अगर यहां 50 होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव निकलेगा, v स्क्वायर नेगेटिव, और v नेगेटिव का भी रूट वो इमेजिनरी हो जाता है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो दैट विल बी 8 minus 1.5, that will be v square is equal to 2 times that is 6.5, that is v square is equal to 13. Okay, that is v is equal to root of 13, that is the answer. These are some examples. देखिए तो यहां पर सिर्फ जो इनिशियल की बात है, k की बात है, that was 0.5, that you have to remember so that we get a nice good value. तो ये आर्बिट्री प्रॉब्लम बनाने का यही हो जाता है, आगे जाकर हमें इस चीज का रियलाइजेशन होता है कि हमने कुछ गलत किया है, लेकिन गलत करने से भी हमें बहुत फायदा होता है। जैसे k को मैंने ज्यादा वैल्यू दिया, k का ज्यादा वैल्यू होने का मतलब f ज्यादा है, f ज्यादा होने का मतलब यह है कि ड्रैग फोर्स बहुत ज्यादा है, उसका मतलब यह है कि जहां मैं इसका वेलोसिटी निकालना चाहता था यह वहां पहुंचा ही नहीं, तो उससे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सो we need to commit mistakes, we need to be frank with the questions, we need to be quite we have to play with the questions, we have to fiddle with them so that we learn things by fiddling with the questions and the objectives. Thank you. Once again I ask you to download my app, Tantray Sir Physics Classes.